Hello students. So today we will discuss about the linked list, because in my last lecture I have told you about the prefix, postfix and infix operation which is performed, okay, and how we will solve the questions and everything I have discussed in my last lecture. So today we will start a very new topic known as the linked list, okay. So last lecture I have told you what is the linear data structure, non-linear data structure and everything I have told you. Okay, so if you want to see, then see, and I will give you the description in the comment box. Okay, now see. So first we will know what is the linked list. Linked list क्या होता है? Okay, so जैसा हम क्या जानते हैं कि it is a, see what is written here, it is a very commonly used linear data structure which consists of group of nodes in sequence. इसने क्या कहा? It consists group of nodes. Group of nodes means it consists a node. Okay, node is nothing. Node is, यहाँ पर nodes का क्या मतलब है? Node have the two things. One is the data. Nodes, this is node. Okay, this is known as node. This is known as node, and it consists two things. Number one, data, and another thing is address. Okay, so this is a node. Node consists two things. One is the data, another thing is the address. Okay, so further I will tell you where this address is used and data is where it is used. Everything I will tell you. Okay, now see, it is a linear data structure. Linear means only one side you can push or pop operations or insertion and deletion. Like in a stack, I have told you stack is a linear data structure. Why we have said that it is a linear? भाई linear किसे कहते हैं? Linear उसे कहते हैं जिसमें insertion और deletion एक साथ हो. Simple देखिए, suppose this is a stack. इसमें क्या हो रहा था? Push भी same हो रहा था और pop भी top से ही हो रहा था. मतलब एक ही जगह से. This is a top. टॉप से ही पुश भी हो रहा था और टॉप से ही पॉप भी हो रहा था. इंसर्शन डिलीशन बहुत एक साइड एक ही तरफ से चल रहे थे. ठीक है, तो वही चीज है. क्या है ये? हमारा लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. नाउ फर्दर सी, इट इज डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर. एलिमेंट ऑफ लिंक्ड लिस्ट आर कॉल्ड नोड्स. जो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोड्स कहलाते हैं. मैंने बताया आपको नोड्स क्या होता है. नोड्स द कलेक्शन ऑफ द टू थिंग्स. वन इज द डेटा एंड अनदर इज द एड्रेस. ओके, सो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द linked list. Okay, so next, each node holds its own data and address to the next node. जो मैंने बताया आपको, क्या बताया कि जैसे देखिए, मैंने अभी आपको लोगों को एक चीज बताई क्या, कि जो नोड होती है, नोड कंसिस्ट, दिस इज अ नोड कंसिस्ट टू थिंग्स. वन इज द डेटा, आई विल चेंज द कलर. ओके, वन इज द डेटा and another thing is address. Okay, so here are the two things, data and address, and this whole combination is called node. This whole combination is called node. So same thing is written here. Each node holds its own data. यहाँ पर क्या है? इसका अपना डेटा होगा. Okay, and address to the another node. और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब जैसे इससे कोई लिंक होगी, कोई दूसरी नोड, तो वहां पर इसका जो एड्रेस होगा वो इसके पास होगा. ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा जब मैं टाइप्स ऑफ द लिंक लिस्ट बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने, तो मैं इसको एकदम क्लियर कर दूंगा आपको क्या है. अभी हम सिर्फ क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन. इसको आप नोट भी कर सकते हैं, पूरा एज इट इज मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि व्हाट इज द लिंक लिस्ट. अभी हम क्या देख रहे हैं कि लिंक लिस्ट बेसिकली क्या होती है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, व्हाट इज द यूजेस ऑफ द लिंक लिस्ट. सो इन दिस लेक्चर वी विल कवर ओनली दिस थिंग. ओके, नाउ वी विल कम सी. लिंक लिस्ट आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रीज और ग्राफ. ठीक है, लिंक लिस्ट किस लिए यूज होती है? टू ट्रीज और ग्राफ, इन दोनों को उसमें क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट यूज करते हैं. ठीक है, सी दिस इज द नोड 1, दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 2, दिस इज नोड 3. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? नोड 1 है. नोड 1 में क्या है? एक डेटा है, एक एड्रेस है. ठीक है, जो फर्स्ट होता है उसको हेडर कहते हैं हम. ठीक है, तो पहला क्या है? डेटा है, फिर उसका एड्रेस. अब देखिए ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस इस नोड का है. ठीक है, इस नोड का एड्रेस ये, जैसे सपोज दैट कि आप हैं, जैसे सपोज दैट वी आर टू फ्रेंड्स. सपोज देयर इज अ वन फ्रेंड हुज नेम इज ए. ओके, देयर इज अनदर फ्रेंड हुज नेम इज बी. ओके, सो सपोज ए वांट्स टू गो टू द बी, मतलब हम चाहते हैं कहां जाना? बी के घर जाना चाहते. तो एक तो हमारे पास हमारी एक इंफॉर्मेशन होगी, जो भी होगी, सपोज दैट कि भाई मैं हूं
कंपाइलर, कंपाइलर जाना चाहता है किसी के घर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास एड्रेस होगा, किसका एड्रेस होगा, मिस्टर बी का। बी का एड्रेस नहीं होगा तो अभी तक जा नहीं सकता। तो सेम थिंग इज हियर कि वन नोड कंसिस्ट डेटा, डेटा इज ओन थिंग वट एवर द नोड इज, मतलब जो नोड का डेटा होगा वो उसका होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि सपोज देयर इज अ वन फ्रेंड, ठीक है, एक फ्रेंड है, उसके पास अपना एक डेटा, मतलब एक अपनी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई मैं मिस्टर ए हूँ, उसने क्या कहा, मैं मिस्टर ए हूँ और मुझे जाना है मिस्टर बी के यहाँ, ये हो गए मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर बी के यहाँ जाना, बी के यहाँ कब जाएगा, जब ए के पास यहाँ पर बी का एड्रेस होगा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट समझिए कि बेसिकली लिंक लिस्ट का क्या मतलब है, कि नोड का, यहाँ पे नोड का क्या मतलब है, और नोड इज द लिंक लिस्ट। जब ये एक नोड दूसरे में कनेक्ट होती है तो वही चीज क्या कहलाती है, लिंक लिस्ट, ठीक है। ये आ गया सिंपल आपको समझ में कि कैसे मतलब नोड है और कैसे डेटा और एड्रेस क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। जो मैंने ये बनाया आपको दिखाया यहाँ पर, ये आपको क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। नाउ वी विल सी दैट कि व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ द लिंक लिस्ट, वेयर वी कैन यूज दिस लिंक लिस्ट, ठीक है। तो जैसा अभी आपको मैंने बताया था कि किसमें, ग्राफ में यूज होता है, ट्री में एंड क्यू, इन सब में क्या है हमारा यूज होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखी है, लिंक्ड लिस्ट यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू एंड ग्राफ, मतलब इन तीनों में जो है हमारा इसके इंप्लीमेंटेशन में यूज होती है क्या, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट यू इंसर्ट एलिमेंट एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब ये चीजें, ये अभी आपको जब मैं इंसर्शन डिलीशन बताऊंगा तो उसमें आप जो है इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, इन लिंक लिस्ट वी डोंट नीड टू नो द साइज ऑफ इन एडवांस, मतलब क्या है कि जैसे आप हम इससे पहले मैंने आपको स्टैक बताया था, तो स्टैक में हम पहले ही डिफाइन कर देते थे, क्या डिफाइन कर, सपोज दैट हमने एक स्टैक डिफाइन किया, स्टैक ए, हमने क्या डिफाइन किया, एक डिफाइन किया स्टैक ए, जिसका हमने वो दे दिया कितना, 5, मतलब सिर्फ इसमें 5 ही वो हो सकते हैं, 5 ही एलिमेंट आ सकते हैं, 2 3 4 और 5 के बाद यदि कुछ भी आया जाएगा तो दैट स्टैक इज कॉल्ड ओवरफ्लो, मतलब ये स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं, हम उसमें प्री डिफाइन नहीं कर देंगे कि 5 ही एलिमेंट को हम फिक्स कर सकते हैं, नो, हियर वी डोंट नीड टू नो कि कितना साइज है उसका, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में भी अपना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड। सो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ द linked list. Now further we will see that what is the advantages and disadvantages of the linked list. Okay, now see, now we will see the advantages and disadvantages of the linked list. So first advantages of the linked list is they are dynamic in nature, okay, dynamic in nature, which allocates the memory when required. इसका मतलब क्या है, मतलब डायनेमिक का मतलब उसमें पहले से फिक्स नहीं होता, जैसे कि हमने देखा था स्टैक में प्री डिफाइंड होता था कि कितने उसमें एलिमेंट होंगे, हम पहले ही क्या लिख देते थे, कोई भी हम डेटा टाइप लेते थे, सपोज दैट इंटीजर लिया, एक ए लिया, उसमें हमने लिख दिया यहाँ पर 3, तो मतलब 3 एलिमेंट ही आएंगे, मतलब स्टैटिक हो गया। यहाँ के लिए डायनेमिक इन नेचर, इसका मतलब क्या हो जाता है, हमको एलोकेट करने की जरूरत नहीं कि इसको कितने मेमोरी की जरूरत है, ठीक है। So this is the benefit of the linked list. That's why we are using this linked list in a graph, tree and queues. Okay. Now insertion and deletion can be easily implemented इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ही आसानी से जो है क्या है, इंसर्शन डिलीशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। स्टैक एंड क्यू कैन बी इजिली एग्जीक्यूटेड, इससे हम जानते हैं स्टैक भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और क्यू भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम, क्यों, इसमें जब कोई लिमिटेशंस नहीं होगी तो इसका एक्सेस टाइम भी जो है हमारा फास्ट होगा एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या है कि जैसे क्या है, द मेमोरी इज वेस्टेड एज पॉइंटर रिक्वायर एक्स्ट्रा मेमोरी टू स्टोरेज। इसका क्या मतलब है कि सपोज दैट वी हैव वन लिंक लिस्ट, ओके, अब एक लिंक लिस्ट है, एक तो ये डेटा रख रहा है, ऊपर से इसको एड्रेस भी चाहिए जो कि दूसरे का है, ठीक है, तो मतलब इसको एक एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत पड़ी एज कंपेयर टू स्टैक। और इसमें स्टैक होगा, स्टैक में क्या था, हमारे पास एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत नहीं, जितना हमने कर दिया उतना ही लेगा, लेकिन यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा मेमोरी की भी जरूरत पड़ रही है इसको, ओके। सो इन दिस मेमोरी इज वेस्टेड, ठीक है। अगेन अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ईच नोड हैज टू एक्सेस सीक्वेंशियली, मतलब एक के बाद एक ही चलेगा, ठीक है। रिवर्स ट्रेवर्सल इज डिफिकल्ट, इसमें एक बार कुछ फॉरवर्ड में हो गया तो उसको रिवर्स करने में इसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है एज कंपेयर टू अदर्स, ओके। सो दिस इज द
lecture today I have delivered is linked list. What is the linked list? How many and what is the application of the linked list and disadvantages of the linked list? Okay, if you want to read the stack, then I will give you the link in my description box. You can find out from there. Okay, so in my next lecture, I will tell you about types of the linked list and how we will access or insert or delete in the linked list. Okay, thank you class.